This is the unit 4th, work power energy, and the lecture 3. The first topic is the notion of the potential energy. Potential energy is the stored energy possessed by the body by virtue of its special position or its configuration. One very pet word just to define this, we are saying that it is due to its state of strain. So this word is very famous for defining the potential energy, that potential energy of any body is due to the state of strain or the special position or its special configuration. Now see the gravitational potential energy. If the body is thrown in the upward direction, the force is equal to mg, and the distance covered from A to A dash, it is h. So W is equal to mgh. This work gets stored in the form of potential energy, and this is called the gravitational potential energy, denoted by U is equal to mgh, and the unit of the energy is joule. Take the second topic. What do you mean by the conservative forces and the non-conservative forces? If the work done is depending only on the initial and the final position of the body, not on the actual path followed, then the force is called, work done is called the conservative force, and the work done is also known as the conservative. The force, for an example, the gravitational force and electrostatic force, they are the good examples of the conservative forces because of the fact that they are only dependent on the initial and final position. See the example. If the body is just moving from A to B vertically upward, so here the F is in the same direction and D is the H, and that is also in the same direction. So angle between the F and D is the theta is equal to 0 degree and D is equal to H. So W is equal to mgh and cos 0 degree, so W is equal to mgh. Now see another case. If the body is moving from A to B in a slanting way, एक किसी एंगल पे झुके हुए स्लैंट की तरह से अगर ये मूव कर रहा है, तो देन व्हाट विल हैपन, mg इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन and mg cos theta here and mg sin theta. So what will be the force in moving from A to B? That is equal to mg sin theta, and this mg cos theta is balancing the reactionary force. So mg cos theta is balanced by the reactionary force. Only the force which is remaining, that is F is equal to mg cos sin theta, and the work done is equal to force into the distance covered is AB, and the force and the displacement both are in the same direction. So the cos 0 degree, it is mg into sin theta into cos 0 degree. So mg, and here according to this triangle will get h upon AB. This is the value of the sin theta perpendicular upon hypotenuse into AB, and cos 0 is equal to 1. So this AB will be cancelled out and work done is equal to mgh. So we have seen that it is not dependent on the path followed. चाहे बॉडी को हम वर्टिकली फेंक रहे हैं या बॉडी को स्लांट वे में किसी एंगल पे फेंक रहे हैं, लेकिन टोटल वर्क डन जो है वो mgh ही आ रहा है. सो सच टाइप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स. एक और प्रॉपर्टी होती है कंजर्वेटिव फोर्स की कि अगर वर्क डन हम कैलकुलेट करें फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड पाथ, तो वो हमेशा क्लोज्ड पाथ के लिए हमेशा 0 आएगा. नाउ सेकेंड, B इज द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, देन द फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव. फॉर एन एग्जाम्पल, द फ्रिक्शनल फोर्स एंड द विस्कस फोर्स आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. विस्कस फोर्स जो है वो एक तरीके से ऐसा मान सकते हैं कि वाटर में लगती है बिकॉज ऑफ द लेयर्स ऑफ द लिक्विड. Work done by a non-conservative force around any closed path is not 0. यानी कि नॉन कंजर्वेटिव में क्लोज्ड पाथ के लिए ये वर्क डन 0 नहीं होता है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए
क्लोज्ड पाथ के लिए वर्क डन 0 होता है। नाउ सी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, दिस इज द सेकेंड टॉपिक एंड अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, आप ये हुक्स लॉ इज नथिंग, आप ऐसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि किसी भी स्प्रिंग में हम जितना वेट डालते जाते हैं उतना ही ज़्यादा एक्सटेंशन होता जाता है, दिस इज कॉल्ड द हुक्स लॉ। इसी को मैथमेटिकली हम लिख लेते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, वेयर F इज द force attached and x is the extension in the spring or displacement in the spring. So F is equal to minus kx, k is called the spring constant or the force constant. So this F is equal to minus kx is known as the Hooke's law. Small k is equal to F upon x. So small k, the spring constant is having the unit Newton per meter, or W is equal to 0 to xe, E फॉर द एक्सटेंशन, क्योंकि जब हम वेट दे रहे हैं तो स्प्रिंग जो है वो नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रही है, एक्सटेंशन हो रहा है। तो F dx, F की वैल्यू kx dx, माइनस बाहर ले लेते हैं, तो W इज इक्वल टू माइनस k इंटू एक्स ई स्क्वायर अपॉन 2। इस एक्स ई को फिर मैं एक्सप्लेन करूँ, इसमें एक्स ई से कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि स्प्रिंग एक्सटेंशन में है, इसलिए हमने इसको डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द एक्सटेंशन एक्स ई से डिनोट किया है। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पुलिंग फोर्स एफ ई इज पॉजिटिव, जो पुलिंग फोर्स होगा उसके लिए इतना ही वर्क डन किया जाएगा, दैट इज डिनोटेड बाई एक्सटेंशन में वर्क डन कितना होगा, एफ ई इज इक्वल टू डब्ल्यू ई इज इक्वल टू प्लस के एक्स ई, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्सटेंशन की वजह से, डिवाइडेड बाई 2। व्हेन द स्प्रिंग इज कॉम्प्रेस्ड, अब दूसरा केस ले लें, दूसरे केस में भी डिस्प्लेसमेंट होगा बट द डिस्प्लेसमेंट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, और बिकॉज जब नेगेटिव होगा तो एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली लेस देन 0 होगा। तो W इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स सी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे C जो है वो कॉम्प्रेशन के लिए यूज हुआ है क्योंकि हम स्प्रिंग को कॉम्प्रेस्ड कर रहे हैं, वी आर कॉम्प्रेसिंग द स्प्रिंग, दैट इज वाई इट इज ड्यू टू द कॉम्प्रेशन। और ऊपर वाले केस में एक्स ई लिखा था क्योंकि उस वहाँ पे स्प्रिंग एक्सटेंड कर रहा था। अगेन W इज इक्वल टू माइनस के एक्स डी एक्स एंड इट इज इक्वल टू फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन, तो के एक्स आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स एफ स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए ये एक्स आई पहले आ जाएगा, एक्स एफ बाद में आ जाएगा। रूलिंग ये है कि हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि ये माइनस पहले लिखा हुआ है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। कंक्लूजन्स इन दिस हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल। सेकेंड, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस, हेंस द स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। See one very simple example, M is equal to 1000 kilograms, V is equal to 18 kilometers per hour, that is 18 into 5 by 18, that is a 5 meter per second. Okay, small k is equal to 6.25, that is the spring constant or the force constant, 6.25 into 10 to the power 3 Newton per meter. So half mv square is equal to half kxm square. ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो स्प्रिंग की एनर्जी के बराबर होगी, तो इससे एक्सएम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एम अपॉन के इंटू वी। तो सब्सटीट्यूट द वैल्यू 1000 अपॉन 6.25 इंटू 10 to the power 3 इंटू 5 एंड आफ्टर द कैलकुलेशन यू विल गेट एक्सएम इज इक्वल टू 2 मीटर्स। यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी जिधर मोशन कर रही है उसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। म्यू इंटू आर, म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू एम जी, सो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी। आर जो है फिर से समझ लीजिए ये रिएक्शनरी फोर्स है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स third law of motion. Now take the third point of this lecture, that is the conservation of mechanical energy. In the mechanical energy we are having only the kinetic energy as well as the potential energy. So the total mechanical energy of the system is conserved.
यानी जहाँ कहीं भी मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, और जहाँ पोटेंशियल नहीं दिखाई दे रही है इसका मतलब वहाँ पे सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो और कुछ एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो। सो द टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है ए से लेकर के सी तक, तो बॉडी वहाँ पे जा कर के एक सेकेंड के लिए रुकेगी और फिर अगेन उसका जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होना शुरू हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज द एच, और जब ये दोबारा जर्नी करना शुरू करेगी, यानी ऊपर से रुक करके फिर नीचे आना शुरू करेगी, तो मान लीजिए ये x है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस ऑटोमेटिकली h माइनस एक्स हो जाएगा। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, हमको ये प्रूफ करना है कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है इन ऑल द पॉइंट्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे एट सी पे हमने अभी आपको बताया कि थोड़ी देर के लिए बॉडी रुकेगी, यानी कि वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो द काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन द वेलोसिटी, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। h का जो कॉन्सिडरेशन है वो हम ग्राउंड से करते हैं, ठीक है। हमेशा जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो h की वैल्यू यानी हाइट जो है वो हम ग्राउंड से कंसीडर करेंगे। सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब अगर हम बी पॉइंट पे आते हैं तो बी पॉइंट पे आप देख रहे हैं बॉडी मूव भी कर रही है और ग्राउंड से किसी हाइट पे भी है, h माइनस एक्स हाइट पे भी है, तो इट पोजेसेस द पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी बोथ। तो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन राइट इट डायरेक्टली mg। अभी मैंने बताया कि h जो कंसीडर करेंगे वो ग्राउंड से कंसीडर करेंगे, तो ग्राउंड से a से b तक का जो डिस्टेंस है वो h माइनस एक्स है। वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। u की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे ऊपर सेकेंड जर्नी के लिए, एंड 2gh इज इक्वल टू 2gx। ये c से लेके b तक का कितना डिस्टेंस है x आएगा। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m एंड द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज 2gx। दिस 2 कैंसिल आउट एंड यू विल गेट mgx। टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, mgh minus x plus mgx, mgh minus mgx plus mgx, it will be cancelled out and the total energy again comes mgh. At the point A, the kinetic energy is equal to half mv square and the height is negligible from the ground, so h potential energy is equal to mgh। h चूँकि 0 है इसलिए potential energy यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर की वैल्यू 2gh आ गई है। E इज इक्वल टू 1/2m इंटू वी स्क्वायर 2gh प्लस 0 एंड दिस इज अगेन कम्स E इज इक्वल टू mgh। सो वी आर सीइंग दैट एट C point, at B point, at A point, the total energy remains constant, or we can say it is conserved. Though at the point C kinetic energy is 0, that means all the energy, mechanical energy, it is in the form of potential energy. At the point B some potential energy is there and some kinetic energy is there, and at the point A potential energy is 0, that means all the energy is in the form of kinetic energy. But remember children, it should not touch the ground, because if it touches the ground then the sound energy will be included. So before touching the ground, that means we have to consider only the mechanical energy, and mechanical energy is having only the two components, that is the kinetic and the potential. We are not going to include any other type of energy, the heat energy, sound energy, otherwise it will be very difficult for us just to explain the law of conservation of mechanical energy. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ गर्ल स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, इट इज जस्ट लाइक द सिंपल पेंडुलम। आपने एक पेंडुलम को इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे ले गए, फिर दिस इज द बी पॉइंट एंड दिस इज द सी पॉइंट। ए पॉइंट पे हाइट ग्राउंड से हाइट पे है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। दिस पोटेंशियल एनर्जी is converted in the form of kinetic energy
and at the center, at the mean position, it is having the maximum kinetic energy. It is the mg h, and potential energy is 0 because the value of h is 0 from the ground. Due to the inertia of motion, the body crosses this mean position and goes to the other side. तो अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 करके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में फिर चेंज हो रही है. तो यहाँ पे फिर जब दूसरे एंड पे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो जाएगी. दिस पोटेंशियल एनर्जी अगेन प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी एंड द बॉडी रिटर्न्स बैक and crosses the mean position and goes to the other side. This process continues. Now let us see the forms of the energy. Now several forms of the energy. Everything is the form of the energy, but here we are discussing the heat energy. It is because of the random motion of the molecules of the body, because the kinetic energy is held responsible for the temperature. तो एक फॉर्मूला है वो जैसा मैं लिखना भूल गया था, अभी लिख रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर. यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एंड दैट इज ओनली द कॉज ऑफ हीट एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम ऑफ वाटर रिलीजेज अबाउट 42,000 जूल्स ऑफ एनर्जी व्हेन इट कूल्स बाई 10 डिग्री सेल्सियस. 1 किलोग्राम वाटर जो है वो रिलीज करेगा 42,000 जूल्स ऑफ एनर्जी अगर उसको हम 10 डिग्री सेल्सियस तक कूल करते हैं तो. दूसरा एक है इंटरनल एनर्जी, कहीं कहीं यूज होता है. दिस इज ड्यू टू द पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एंड ऑल्सो देयर रैंडम मोशन. दैट इज द इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी. तीसरा है केमिकल एनर्जी. अ केमिकल रिएक्शन इज बेसिकली nothing, it is only the rearrangement of the atoms. अगर if the heat is released in a chemical reaction, then the reaction is said to be exothermic. ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. and heat is absorbed. जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम इस टाइप के रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. देन द रिएक्शन इज एंड व्हेन द एक्सोथर्मिक एंड व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब, आई एम सॉरी अगेन, व्हेन द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक इफ द हीट इज रिलीज्ड, एंड इफ द हीट इज एब्जॉर्ब देन द रिएक्शन इज सेड टू बी एंडोथर्मिक. Children, I have taken that form of energy where you have the concern in the class 11. Otherwise you all know that there are the several forms of the energy. If the energy is coming from the sun, that is the solar energy. If the energy is coming from the wind, it is the wind energy. But I have taken that type of energy, that is the chemical energy. And just to explain you the exothermic reaction and the endothermic reaction, it will be very clear when you just go through the chemistry chapter 1. एग्जाम्पल में देख लेते हैं. कोल इज मेड अप ऑफ द कार्बन, एंड इफ वी burn the 1 kilogram of coal, then 3 into 10 raised to the power 7 joules of energy is obtained. Now fourth one is the equivalence of the mass and energy before the Einstein. बहुत ही फेमस इक्वेशन है ये आपकी. बिफोर द आइंस्टीन वी आर थिंकिंग that the two identities are there, that is one is the mass and another one is the energy. But Einstein, what the Einstein did, that there is a equivalence, that means the mass and energy they are the equivalent. क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर हम न्यूक्लियस को तोड़ते जाते हैं यानी कि न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. तो अगर उसके पास एनर्जी थी नहीं तो वो कहाँ से रिलीज होती है. इससे ये उन्होंने कहा कि एनर्जी और मास भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं. ये बहुत ही फेमस इक्वेशन है, आपको पता भी है. E इज इक्वल टू डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर. इट इज गिवन बाई द आइंस्टाइन. इफ डेल्टा m की वैल्यू 1 किलोग्राम है, अगर कहीं पे 1 किलोग्राम का मास डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रॉय तो नहीं होगा क्योंकि कंजर्व रहता है, अगर कहीं डिस्ट्रॉय लगता है इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 किलोग्राम मास जो है वो नाउ it has been converted in the form of
एनर्जी। तो आप देख लें कितनी एनर्जी आएगी 1, एंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट यू ऑल नो दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इट इज 9 × 10⁻16 जूल्स, यानी कि 1 किलोग्राम मास से आपको इतना एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। 9 × 10⁻16 जूल्स की एनर्जी आपको मिल जाती है। नाउ फिफ्थ हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ द हैवी न्यूक्लियस इनटू 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई, यानी एक बड़ा न्यूक्लियस अगर 2 या 2 से ज़्यादा न्यूक्लियाई में टूटता है, यानी न्यूक्लियर लेवल पर रिएक्शन होनी, यानी न्यूक्लियस का टूटना जरूरी है। तो लाइटर न्यूक्लियाई में तो टूटता है, तो दैट इज नोन एज द न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और अगर छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, दैट रिएक्शन इज नोन एज द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन न्यूक्लियर लेवल पे होती हैं, दैट इज वाई इट इज नोन एज द न्यूक्लियर एनर्जी। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजिंग ऑफ द 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। इन बोथ द रिएक्शंस अ सर्टेन मास disappears which appears in the form of nuclear energy। और ये डिसअपियर वाले मास को ही हम लोग डेल्टा m से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम लोग मास डिफेक्ट कहते हैं। तो दिस इज द लेक्चर 3rd फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, गो थ्रू इट and try to understand what I have just told to you today.